Good morning everyone. Chapter 5 Exponents and Indices. Yesterday we have discussed first question. So now we will discuss question number second, that is find the value of k in each of the following. So A part 2 raised to power 4 multiplies 0.5 raised to power minus 3 is equal to 2k. Now to solve this one, here is in this statement decimal is given to you. So your first step is you have to remove the decimal. So 2 raised to power 4 multiply, it will become a 5 by 10 raised to power minus 3 is equal to 2 raised to power k. Now cut it, I will get 1 by 2. अब देखो यहाँ पे पावर क्या है आपकी माइनस. If you have to given a power negative, then the statement will be reciprocal. So 1 by 2 will be changed into 2 by 1. एंड पावर यू विल बी राइट डाउन इन पॉजिटिव. माइनस 3 था, अब ये क्या हो जाएगा प्लस 3. सो इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर के. अब बच्चे देखो यहाँ पे इन मल्टीप्लीकेशन बेस इज सेम. इफ बेस इज सेम देन पावर्स विल बी एड. सो राइट डाउन 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर के. नाउ इफ base is equal then power will also equal. Clear? So k is equal to 4 plus 3, then you will get k is equal to 7. These one we have already discussed in our rules. So rules should be clear to you. Now statement is 1 by 3 raised to power minus 4 division 9 raised to power minus 1 by 3 is equal to 3 raised to power k. Now for this माइनस पावर इज गिवन टू यू, इट मीन्स इट विल बी रेसिप्रोकल. सो 1 by 3 क्या हो जाएगा 3 by 1. पावर 4 नेगेटिव पावर है, वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव. डिवीजन. नाउ हेयर फर्स्टली आई हैव ब्रेक इट द 9. सो 9 को मैंने ब्रेक लिया 3 ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 by 3. अब ये डिवीजन है. डिवीजन में बेस क्या है आपका सेम है. इट मीन्स पावर्स क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी. तो सॉरी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी. सो 4 माइनस 2 by 3. 2 by 3 जो है वो आपके माइनस के है. सो इन नेक्स्ट स्टेप आई हैव रिटर्न 4 प्लस 2 by 3. दैट्स वाई आई हैव रिटर्न 4 प्लस 2 by 3. डिवाइड में पावर्स क्या होती है नेगेटिव, और जो आपकी सेकेंड वैल्यू थी वो ऑलरेडी माइनस 2 by 3. दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस. नाउ सी your base value is equal, it means the powers will also be equal. So now take a LCM and you can find out the answer of k. So for practice I have given C and D part. This one is same like your previous question, so please try it. Now look at your question number 3rd. 8 over 27 raised to power minus 2 by 3, then minus 1 by 3 raised to power minus 2, then minus 7 raised to power 0. So your first step is minus is given to you, it means you have to do a reciprocal. 8 by 27 क्या हो जाएगा 27 by 8, और जो पावर है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये 1 by 3 है, ये बन जाएगा 3 by 1, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव. पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना, पावर जस्ट क्या हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव. माइनस 7 रेज टू पावर 0 आई हैव रिटन एज इट इज. नाउ सॉल्व इट हेयर. 27 का क्यूब क्या हो रहा है 3 एंड 8 का 2. सो आई हैव रिटन 3 by 2 ऑफ होल क्यूब. 3 by 2 ऑफ होल क्यूब मल्टीप्लाई 2 by 3 इज गिवन टू यू, माइनस 3 of square and 7 raised to power 0 means 1. If you have to given any value of power 0, it means always 1. So now solve the calculation. 3 and over 3 will be cancel out. So 3 by 2 of square it is left. Then minus 3 of square it's 9. Then minus 1. Then just simplify. So it's 3 of square it's 9. 2 of square it's 4. Then minus 9 minus 1. So solve it by LCM. We will get minus 31 by 4. So this is your answer. Now look at your B part. 9 raised to power 5 by 2 minus 3 multiply 5 raised to power 0 minus 1 by 81 raised to power minus 1 by 2. So first of all bracket this one. So I have written 3 of square to make a
9, 3 of square, multiply 5 by 2 as it is, minus 3 multiply 5 raised to power 0 become 1, minus here is power is given to you negative, so it will be reciprocal and power will be changed into positive sign. Now solve the calculation. Over 2 and into it will be cancelled out, so 3 raised to 5, 3 into 1 is 3, minus 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 9 ऑफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1 by 2, कैंसल आउट, देन इट्स बिकम अ 243 minus 3 minus 9. Then solve the calculation. It is 231. So for practice I have given C and D part. Please try it. Simplify. Next question is simplify. Statement is 81 raised to power 3 by 4 minus 1 by 32 raised to power minus 2 by 5 plus 8 raised to power 1 by 3 into 1 by 2 raised to power minus 1 into 2 raised to power 0. How you can solve it? So apply the rules. 81 raised to power 3 by 4, पहले ये नेगेटिव पावर है, मैं अगर नेगेटिव पावर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करो और पॉजिटिव पावर बन जाएगी. देन प्लस 8 1 by 3 पावर इंटू इसको भी रेसिप्रोकल करो बच्चे, क्योंकि ये -1 है तो मीन्स ये बन जाएगा 2 by 1. 1 को ओवर लिखने की नीड नहीं होती, सो 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1. नाउ 81 को बेटा फैक्टर्स बनाओगे, देन आई विल गेट 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 by 4 आपको गिवन है, माइनस 32 के फैक्टर्स बनाओगे, देन इट्स बिकम अ 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 by 5. देन 8 के फैक्टर्स बनाओगे 2 ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 1 by 3, सो इंटू 2 1 जा 2 मैंने ऐसे लिख लिया. नाउ by calculation 4 and over 4 will be cancelled out, so 3 raised to power 3 minus 5 and over 5 will be cancelled out, 2 raised to power 2, then plus 3 and over 3 will be cancelled out, 2 into 2. Now just solve the value. 3 of q is 27 minus 2 of square is 4, then 2 into 2 is 4. By this I will get a 27. This is your answer. And B part I have given to you for practice. This one same, minus is given to you, so reciprocal, इसको ब्रेक कर लो 8 को 2 पावर्स में और ये 1 बन जाएगा और ये भी क्या कर लो रेसिप्रोकल. नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 5. सिंप्लीफाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 रूट ऑफ 4 रेज टू पावर 1 by 3 इंटू 4 रूट ऑफ 9 माइनस 4 रूट ऑफ 4 रेज टू पावर 1 by 3. सो फर्स्ट स्टेप इज बच्चे, यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज में 1 by 3 है, तो मैंने इसको कंबाइन करके 1 by 3 लिख लिया, नथिंग एल्स. दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके 1 by 3 साइड पे कॉमन लिख लिया. देन व्हाट यू हैव टू डू, 4 रूट 9 इट्स बिकम, अगर बच्चे आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे रूट के बाद जो भी है वो बन जाएगा 9 रेज टू पावर 1 by 4. अगर आपको होता 9 रूट 3 देन ये होता 9 1 by 3. 1 में चेंज हो जाता है 1 ओवर. क्लियर? सो मैंने वही स्टेप किया है, ये बन जाएगा 4 रूट 9 इट्स 9 रेज टू पावर 1 by 4 और ये भी 4 रूट 4 बन जाएगा 4 रेज टू पावर 1 by 4. एंड सेम दिस वन यू विल बी राइट डाउन 1 by 3. अब यहाँ पे आपके बच्चे 2 वे हैं. फर्स्ट वे मैंने ये सॉल्व किया है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट को आप ब्रेक कर दो, फर्स्ट को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 into 1 by 4 this one, then 9 1 by 4 into this one, then do the multiply these two numbers, then do the multiply with this one, and 1 by 3 you will be write down as it is. Afterwards, now base is same, so in multiplications powers will be add. Here power is same, so base will be do multiply 9 4s 36 एंड पावर को कंबाइन करके लिख लो. यहाँ पे भी पावर सेम है, पावर को कंबाइन करके लिख लो और 9 4s 36 एंड यहाँ पर बेस सेम है 4 4 रेज टू पावर 1 by 4 प्लस 1 by 4 बिकॉज मल्टीप्लाई इज गिवन टू यू. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू योर रूल ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे. ओनली दीज टू वैल्यूज विल बी लेफ्ट. सो हियर यू विल सॉल्व इट इन दिस वे. Take a LCM of these numbers. 9 1 by 4 by LCM, then you will get this one 2 by 4. Then solve it this one. It's just a calculation. Solve the calculation. Solve it by LCM. Then you will get 9 raised to power 1 by 2 and 4 raised to power 1 by 2. Then
9 को ब्रेक करो 3 ऑफ स्क्वायर एंड 1/2 ऐसे ही है. देन 4 को ब्रेक करो 2 ऑफ स्क्वायर, ये भी 1/2 ऐसे ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे. देन 3 - 2 रेज टू पावर 1/3 आपको गिवन है. 3 में से 2 गए 1 और 1 की पावर 1/3, इट्स अ 1 आंसर. नाउ लुक एट योर सेकेंड वे हाउ यू कैन सॉल्व इट. योर सेकेंड वे इज 4√9 + 4√4 दिस वन. फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही है कि जो रूट है वो 1/4 में चेंज हो जाएंगे, 1 ओवर में चेंज हो जाएंगे. देन ये देखो बच्चे a + b a - b मीन्स फर्स्ट वैल्यूज भी सेम है और सेकेंड वैल्यू भी सेम है, जस्ट डिफरेंस किसका है, साइन का. इट मीन्स हेयर यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a + b a - b मीन्स a² - b². दिस वन इज द शॉर्ट वे. सो 9 रेज टू पावर 1/4 ये आपकी a वैल्यू है और b वैल्यू है आपकी 4 रेज टू पावर 1/4 a² - b². अब इन दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1/2. इन दोनों पावर्स को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 1/2 और बाकी के नंबर्स हैं आप वैसे ही लिख दोगे. अब यहाँ पे 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 ऑफ स्क्वायर इंटू 1/2 और इसमें 4 को लिख सकते हैं 2 ऑफ स्क्वायर इंटू 1/2. अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 - 2 रेज टू पावर 1/3. देन सॉल्व द कैलकुलेशन सेम लाइक दिस वन. Clear? So this is the second way to use the identity and this one is the first way to solve it by single multiplication. So it's your choice. Now look at your B part. A raised to power 1/3 plus A raised to power -1/3, A raised to power 2/3 -1 plus A raised to power -2/3. अब बच्चे ना तो मैं इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज जो ये मेरी वैल्यूज है वो सेम नहीं है, बेस सेम है लेकिन पावर्स क्या है, अनइक्वल है. और सेकंड थिंग इसमें प्लस और माइनस भी नहीं बन रहा. सो जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाय सिंगल मल्टीप्लीकेशन. तो ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट a raised to power 1/3 और सेकंड होल ब्रैकेट you will be write down as it is. Then write down second number and second whole bracket you will be write down as it is. Do the multiply first to first, first to second, first to third, then first to first, first to second, first to third. Do the multiply with single number, then you will get, see the base is same, यहाँ पे base same है, then powers क्या हो जाएंगी multiplication में plus, and a raised to power 1/3 you will be write down as it is. Same this one multiplication, powers क्या हो जाएंगी add, और यहाँ पे अगर ऐड करोगे प्लस माइनस माइनस, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है प्लस माइनस माइनस. और सेम दिस वन मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या है, सॉरी बेस क्या है सेम, और इन मल्टीप्लीकेशन वी नो दैट पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, और इसको ऐसे ही लिख लोगे और इसको भी सॉल्व करोगे बाय एलसीएम बिकॉज पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस. सो बाय एलसीएम यू विल गेट a raised to power 3/3, इट विल बी एज इट इज. इसको सॉल्व किया -1/3, इसको बाय एलसीएम सॉल्व किया 1/3, इसको ऐसे ही लिखोगे, इसको सॉल्व किया -3/3. नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स. ये बच्चे आपका a raised to power 1/3 माइनस के हैं और ये a raised to power 1/3 प्लस के हैं. सो इट विल बी कैंसल आउट बिकॉज ऑपोजिट साइंस आर गिवन टू यू ऑफ सेम वैल्यू. सेम दिस वन, ये प्लस के a raised to power -1/3 है और ये माइनस के a raised to power -1/3 है. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो 3/3 इट्स 1, इट मीन्स a विल बी लेफ्ट प्लस a/3 -3/3 इट्स -1, and if you have to give one -1 it means the value will be reciprocal. So 1/a you will write down. So you can skip it here or here, it's your choice. Now look at your question number 6. Simplify. √3xy of square divide √x² y. So first step is जो √3 है उसको आप क्या लिखोगे 1/3, और यहाँ पे रूट है ये बन जाएगा 1/2. अगर यहाँ पे कोई बच्चे वैल्यू गिवन ना हो तो वो होता है 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 1/2. अब इसको सिंगल मल्टीप्लाई कर दो पावर्स के साथ, x इंटू 1/3 दिस वन, y² इंटू 1/3 देन आई विल गेट 2/3 डिवाइड x² मल्टीप्लाई 1/2 y पावर 1/2 क्योंकि यहाँ पे 1 है. नाउ this one I have written as it is and 2 and over 2 will be cancel out, so here is only x will be left. Now combine the like terms but look at the center.
sign, this is division is given to you. It means if division is given to you and base is same, then powers will be subtract. So आप सीधा यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने एक स्टेप लिखा है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही है, x रेज टू पावर 1/3 y रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय ये नीचे लिख दिया. अब ये लाइक टर्म्स हैं, मीन्स बेस सेम है, लेकिन पावर्स को क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर डिवीजन रूल. और ये भी सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. इनटू है, यहाँ पे इनटू साइन आएगा. इसको सॉल्व कर दो, देन यू विल गेट x रेज टू पावर -2/3. इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट y रेज टू पावर 1/6. So this is your answer. Clear? So thanks and have a nice day.